A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your political science teacher. So, class, today we all are going to continue this topic of your chapter, freedom, and the name of the topic is freedom of expression. In our last class, we discussed about the negative liberty and positive liberty. Okay, so now negative liberty is basically about the non-interference. We have read about two aspects of freedom, two domains of freedom. First one was absence of constraints, and the second one was uh, uh, opportunities for developing ourselves, giving opportunities to develop individual skills or abilities, right? So basically negative liberty is about absence of restraints or constraints, and the positive liberty is about giving opportunities to so that individual can express themselves. Okay, so now our next topic is freedom of expression. So now with class, one of the issues that is considered to belong to the minimum area of non-interference is freedom of expression. Minimum area of non-interference. ठीक है, one of the issue क्या है? Freedom of expression. One of the important thing. We have to express ourselves, and we have to express ourselves through various uh, with the help of various sources, like with the help of magazines, internet, speech, songs, dance. We can express ourselves, right? These are some of the sources through which we can express ourselves. Through movies, through serials, etc., we can express ourselves. So John Stuart Mill set out good reason why freedom of expression should not be restricted. ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि अकॉर्डिंग टू जॉन स्टुअर्ट मिल व्हाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड. ठीक है, क्यों नहीं रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? सो एज यू हैव सीन, लाइक सो मेनी पीपल, सो मेनी कम्युनिटीज डिमांड्स टू सर्टेन टाइप्स ऑफ बुक्स, प्लेज, मूवीज, आर्टिकल्स, ठीक है, एटसेट्रा. दे डिमांड फॉर बैनिंग बिकॉज उन्हें लगता है कहीं ना कहीं इफ अगर ये बैन नहीं होगा तो क्या होगा, कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी, उनकी कम्युनिटी जो है वो लोअर डाउन फील करेगी. ठीक है, उनकी कम्युनिटी की लाइक insult होगी. ठीक है, so many reasons are there according to community that is the book, the movie or the play, uh, whatever the book, movie or play trying to show is false. ठीक है, so that's why they demand for the bans. But let us think about this demand to ban books in the light of our discussion so far, which sees freedom as the making of choices. Like if we are banning books, ठीक है, if people are demanding for banning books, but look at the other scenario, look at the other side of that. They are not making, they have that freedom of making their own choices. हम उसको क्या कर रहे हैं? We are not looking at that side ना. हम तो अपना हमने expression दिखा दिया कि like we want the ban, but what about the other side? कि वो भी तो अपना ओपिनियन शो कर रहे हैं ना, अपनी चॉइस शो कर रहे हैं. ठीक है, they are making their own choices, they are making their choices, right? So where a distinction is made between negative and positive liberty, where we recognize the need for justifiable constraints, but these have to be supported by proper procedures and important moral arguments. Okay, sometimes what happened, these bans are necessary, these constraints are necessary, but with certain procedures and arguments. एक proper argument होना चाहिए. ठीक है, morally, not कि आप conflict ही करने लग जाओ. ठीक है, वायलेंस करने लग जाओ, नॉट दैट आर्ग्यूमेंट. मॉरली आप आर्ग्यूमेंट करो, प्रॉपर प्रोसीजर हो, एंड आफ्टर दैट क्या है, अगर कोई डिमांड आ रही है बैन्स की तो go through it. ठीक है, जस्टिफिएबल होना चाहिए. ऐसा नहीं है, in our last class also I told you
कि you are not supposed to wear red color dress, you are not supposed to wear white color dress, black color dress. कोई justifiable रीजन होना चाहिए, रीजनेबल रीजन होना चाहिए. ऐसा ही नहीं है कि आपका मन किया, you don't like it and that's why you put pressure on someone else. You are not supposed to wear this kind of clothes, wear this color clothes, etc. Okay, moral argument होना चाहिए, justifiable होना चाहिए. Like right, so freedom of expression is a fundamental value. It is our fundamental value, it is our fundamental or basic value, and for that society must be willing to bear some inconvenience to protect it from the people who want to restrict it. Obviously we have to see so many restrictions in even in the mostly in the Indian community. We have seen like चॉइस ऑफ मैरिज. आई टोल्ड यू, लाइक इसका एग्जांपल भी आया था पहले कि चॉइस ऑफ मैरिज की अरेंज मैरिज मोस्टली फिक्स की जाती है. ठीक है, बहुत बार क्या होता है, गर्ल्स से बॉयज से पूछा भी नहीं जाता है कि डू यू लाइक टू मैरी दैट पर्सन और नॉट और समथिंग लाइक दैट. और क्या कर लेते हैं वो उनके चॉइस जाने बिना, दे मेड द चॉइस, मतलब जिसके लिए चॉइस कर रहे हैं उनसे उनकी परमिशन के बिना, उनकी परमिशन के बिना क्या हो रहा है, चॉइसेस, वो चॉइस कर लेते हैं चीजों. ठीक है, बट दिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वी शुड हैव दिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिससे कि क्या है, बहुत सारी इनकन्वीनियंस हमें फेस करने को मिलती है इफ वी like put our opinion. तो इन सर्टन कम्युनिटीज, इन सर्टन फैमिलीज क्या होता है, उसको बहुत ही ज्यादा एक इश्यू बना दिया जाता है, और लोगों को बहुत ज्यादा कन्वीनियंस भी क्या है, सहनी पड़ती है. बट remember this Voltaire's statement. Voltaire, he was the French writer. ठीक है, फ्रेंच राइटर रहे हैं. फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, लाइक ऑलमोस्ट उस टाइम पे उसकी डेथ हो गई थी. वोल्टेयर स्टेटमेंट, आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट. Now just look at this statement. I disapprove of what you say. Maybe whatever you have said, whatever your opinion is, maybe I disapprove it. मैं उसे अप्रूव नहीं करती हूँ, लाइक मैं उसे नहीं मानती हूँ, बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट. मैं मतलब अपनी लाइक आई विल सेक्रीफाइस माई लाइफ for your right to say it. You have that right to say your viewpoint, your opinion. Maybe I disapprove it. ठीक है, मैं disapprove कर रही हूँ. Maybe I don't like the idea of आपका क्या आइडिया है, ठीक है, but I will defend to death, मतलब I will sacrifice my life just because of your right, जो आपका right है उसके लिए. So this statement is like deeply committed to the freedom of expression, कि it is our basic value, it is our fundamental value to express ourselves, to express our choices, to express our opinions. Okay, and this is the statement given by the Voltaire, one of the famous writer of the France. ठीक है, French writer है. So now some case studies are also there. इंडिया में एक मूवी आई थी दीपा मेहता की, वाटर. ठीक है, the name of the movie is Water. Deepa Mehta wanted to make that film in Varanasi. This film is basically about विडोज. ठीक है, विधवाओं की मूवी थी. ठीक है, बहुत साल पहले, जो लाइक सेंचुरीज, मतलब बहुत साल, आज से 100 साल पुरानी, लाइक जो विडोज होती थी, उनकी लाइफ कैसी होती थी. इट इज ऑल अबाउट दैट. ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम की बात है, अप्रोक्सीमेटली उस टाइम की बात है. ठीक है, सो दीपा मेहता जो है, she wanted to make that film in Varanasi, but जो वाराणसी के लोग थे, ठीक है, there was a strong protest from that section of society. ठीक है, वाराणसी का एक सेक्शन था, सोसाइटी का एक सेक्शन था, उन्होंने बहुत स्ट्रांगली इस चीज को क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था. they thought like it would show India in a very bad light, कि अगर यहाँ की जो विडोज है, उनकी जो लाइफ है, उसके बारे में अगर
एज वर्ल्ड वाइड दिखाया जाएगा तो इंडिया की जो है इंसल्ट होगी, ठीक है। फॉरेन ऑडियंसेस जो है लाइक उन्हें इंडिया के बारे में अच्छा नहीं लगेगा। हमारा जो एंशियंट टाउन है, ठीक है, जो नेम है उस वो बैड इन्फ्लुएंस, मतलब इट वुड ब्रिंग अ बैड नेम टू आवर एंशियंट टाउन। तो दैट्स ये कुछ रीजंस थे वाराणसी के वो उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी का, एंड दैट्स व्हाई दे डिडंट वांट दैट फिल्म टू बी made in Varanasi. Even they didn't want it at all. But Deepa Mehta somehow made that film elsewhere. ठीक है. Name of the movie was is Water. कभी time मिले if you want to see that movie. It is a good movie. ठीक है. John Abraham है, सीमा बिस्वास है, और some good actors are there that movie. तो if possible देखना कभी. ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, दे शो देयर protest, right? Just like that, it was subsequently made elsewhere. Similarly, the book Ramayan Retold by Aubrey Menon, ठीक है, एक रामायण रीटोल्ड है ऑब्रे मेनन की, इसको भी प्रोटेस्ट किया गया, ठीक है। कुछ रीजंस रहे होंगे, लोगों के खुद के व्यू पॉइंट्स रहे होंगे, और उन्होंने कहा कि दिस बुक शुड बी बैंड। एक बुक थी सात्विक वर्सेस बाय सलमान रश्दी, ठीक है, सलमान रश्दी ने एक बुक लिखी थी सात्विक वर्सेस, उसे भी बैन किया गया आफ्टर प्रोटेस्ट, ठीक है। कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने बोला कि इट शुड बी बैन। द फिल्म द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, इसे भी क्या किया गया, बैन किया गया। द प्ले मैं नथुराम बोलते, इसे भी बैन किया गया आफ्टर सम प्रोटेस्ट, ठीक है। सो ये बैन्स थे, क्यों हुआ बैन, ठीक है। एंड हमें लग रहा होगा कि कितना इजी है बैन, लाइक सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, कुछ लोगों ने मिलके कहा कि नहीं इट इज नॉट गुड फॉर सोसाइटी एंड समथिंग लाइक दैट, एंड दे बैंड इट। बहुत इजी रास्ता दिख रहा है, बैनिंग इज एन इजी सोल्यूशन फॉर द शॉर्ट टर्म, बट इट इज जस्ट लुक एट दिस कि ये जो बैनिंग है ये शॉर्ट टर्म के लिए है ना, इट मीट्स द इमीडिएट डिमांड, बट इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स ऑफ फ्रीडम इन अ सोसाइटी। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट, फ्रीडम जो है लॉन्ग टर्म, हमारी फ्रीडम, हमारी सोसाइटी की जो फ्रीडम है उसके लिए इट इज अ वेरी हार्मफुल, बिकॉज वंस वन बिगिन टू बैन देन वन डेवलप अ हैबिट ऑफ बैनिंग। एक बार बैन करेंगे, दो बार करेंगे, आफ्टर दैट क्या होगा, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू मेड दिस अ हैबिट, ठीक है। व्हाट मतलब इट इज नॉट पॉसिबल ना कि आपको जो पसंद है वो मुझे भी पसंद हो, जो मुझे पसंद है वो आपको पसंद हो, या आपको जो पसंद है वो आपकी फैमिली को नहीं पसंद होगा। we all are unique creatures and we all have our own opinions. हम लोग, ऐसा तो होगा ही नहीं कि सारी जितनी भी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे से क्या है, लाइक अग्री करते हो, कोई ना कोई तो कॉन्फ्लिक्ट या कोई ना कोई तो प्रोटेस्ट आएगा ही, राइट। तो ये बैनिंग तो फिर हमेशा होती ही रहेगी, कुछ भी हमारे पास सच्चाई तो कुछ भी ट्रुथ तो कभी अपेयर हो ही नहीं पाएगा, राइट। तो ये बैनिंग जो है इट इज नॉट गुड, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए हमें सही लग रहा है बट इट इज नॉट गुड फॉर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स। बट डज दिस मीन्स दैट वी शुड नेवर बैन, क्या इसका मतलब है हमें बैन नहीं करना चाहिए? आप बोलोगे मैम अभी तो पद्मावत मूवी लास्टली कुछ कपल ऑफ इयर्स बैक लाइक हुई थी रिलीज, बट उसमें भी बैनिंग, उसके लिए भी बहुत प्रोटेस्ट हुए थे, मे बी यू नो अबाउट इट, कि लाइक पद्मावत के लिए हुआ था, ये प्रोटेस्ट हुए थे राजस्थान में, तो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे। बट बैनिंग की जगह नाउ what happened, after all we do have censorship or censorship of films. Is it not similar to banning where only a portion of a film banned and not the whole film? यहाँ पे क्या होता है, कुछ portions को कट कर दिया जाता है बट पूरी मूवी को बैन नहीं करते, तो क्या ये सिमिलर है? The question that is often debated therefore is when should one ban and when should one not? कब बैन करना चाहिए, कब बैन नहीं करना चाहिए, क्या हमें बैन करना ही नहीं चाहिए?
ठीक है. नाउ देयर इज वन मोर एग्जांपल. ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मूवीज, बुक्स, प्लेस. ठीक है, कि कब बैन करना चाहिए, कब नहीं. हो सकता है सेक्शन ऑफ सोसाइटी को या सोसाइटी को हार्म हो इससे. नेशनली दिस बुक इज नॉट गुड, दिस मूवी इज नॉट गुड. ठीक है, समथिंग लाइक दैट हो सकता है. बट ये सब कब करना चाहिए? नाउ वन मोर एग्जांपल, वन मोर केस स्टडी इज देयर. Anyone in England, anyone who is employed to work for the royal household is constrained by a contract, a constraint. सोचिए, वहां पे वो वर्क कर रहे हैं और वहां पे एक constraint है, एक contract है उनका, from writing about the inner affairs of the household. They were not supposed to write anything about the inner affairs. एक contract sign करवाया जाता है. If you are working here after you are not supposed to write about रॉयल हाउस होल्ड. ठीक है, कि अंदर इनर अफेयर्स क्या चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, यू आर नॉट सपोज टू राइट इट. So if such a person were to leave the employment, they would be unable to give an interview or write an article or author a book about the politics of the royal household. कि क्या चलता है रॉयल हाउस होल्ड में. ठीक है, कोई इंटरव्यू नहीं दे सकते, कोई आर्टिकल नहीं लिख सकते हैं, वो कोई बुक नहीं लिख सकते हैं. ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट है. सो इज दिस एन अनजस्टिफिएबल कॉन्स्ट्रेंट ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? क्या आपको लगता है ये अनजस्टिफिएबल कॉन्स्ट्रेंट है? अकॉर्डिंग टू मी, नो. अनजस्टिफिएबल नहीं, इट इज नॉट अनजस्टिफिएबल, इट इज जस्टिफिएबल बिकॉज मे बी रॉयल हाउस होल्ड जो है, ठीक है, वो लोग पॉलिटिकली इन्वॉल्व है. ठीक है, बहुत सब कुछ है, रॉयल है, लाइक ब्रिटेन में, सब इंग्लैंड में लाइक सबसे सुपीरियर है वो. तो उनकी पर्सनल लाइफ्स में क्या चल रहा है, उनके इंटरनल रिलेशनशिप कैसे हैं, इसके बारे में आप वर्ल्ड को बताओ. ठीक है, कोई और वर्ल्ड को बताए. इट इज नॉट इट इज नॉट जस्टिफिएबल ना. तो आप कॉन्स्टेंट रख सकते हो. तो अकॉर्डिंग टू मी इट इज नॉट अनजस्टिफिएबल. यस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बट इट इज अबाउट अदर पर्सन, right? So now constraints of different kind does exist and we are subject to them in different situations. बहुत अलग अलग टाइप के constraints होते हैं. हमने मूवीज का देखा, बुक्स का देखा, ठीक है, रॉयल हाउस होल्ड का देख लिया. So while reflecting on such situations, we need to realize that when constraints are backed by organized social, religious or cultural authority or by the might of the state, they restrict our freedom in ways that are difficult to fight against. Okay, now अगर ऐसी situations में क्या होता है, religious situation में, social situation में, like इन constraints को क्या है, वो support करते हैं कि it is not culturally good. ठीक है, somehow they are restricted our freedom in way. ठीक है, और मे बी उसके अगेंस्ट में लड़ना बहुत मतलब बहुत डिफिकल्ट भी है. But फिर भी, however, if we willingly or for the sake of pursuing our goals or ambitions accept certain restriction, we accept it. ठीक है, our freedom is not similarly limited. हमारी freedom जो है limited नहीं है. We can express ourselves, but कुछ justifiable constraints के साथ. ठीक है, हो सकता है we are not accepting some of the conditions, या हम कुछ चीजें claim नहीं कर सकते हैं, उससे हमारी freedom curtail भी होती होगी. ठीक है, restrict भी होती होगी, but that is for the society. So now we begin by saying that this is the conclusion of the chapter. Before that, I would like to we should read this paragraph also about John Stuart Mill. ठीक है, John Stuart Mill and his book On Liberty. So as you all know, he was a political thinker and an activist of the 19th century Britain. So now he offered a passionate defense of freedom of expression. बहुत कुछ लिखा है उन्होंने freedom of expression के बारे में, freedom के बारे में. In his book, he offered 4 reasons why there should be freedom of expression even for those who espouse ideas that appear false or misleading today. उन्होंने बताया है कि उन्होंने 4 रीजंस दिए हैं अपनी बुक में कि क्यों फ्रीडम जो है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्यों
जरूरी है, क्यों होना चाहिए। इवन उन लोगों के लिए भी बताया है या फिर उन चीजों के लिए भी बताया है कि उन्हें लगता है कि मे बी सम पर्सन अकॉर्डिंग टू अस सम पर्सन इज फॉल्स, उनके आइडियाज गलत हैं या फिर वो हमें मिसलीड कर रहे हैं, बट फिर भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर दैट पर्सन। ठीक है। नाउ व्हाट वाज द फर्स्ट रीजन? नो आइडिया इज कम्प्लीटली फॉल्स। कोई भी आइडिया कम्प्लीटली, चाहे उसमें 1% ट्रुथ हो, ठीक है, वो कम्प्लीटली कभी भी फॉल्स नहीं होता है। What appears to us as false has an element of truth. If we ban false ideas, we should lose that element of truth that they contain. ठीक है, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं सच्चाई, कोई ना कोई सच्चाई उस झूठ में होती है। वो बोलते हैं कोई भी झूठ झूठ नहीं होता, या कोई भी आइडिया जो है वो गलत नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें सच होता है। ठीक है। एंड इफ वी आर बैनिंग दैट बैन, तो हम उस एलिमेंट को, चाहे वो 1% ही क्यों ना हो, उस एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं? लूज कर रहे हैं। एलिमेंट ऑफ ट्रुथ को क्या कर रहे हैं? लूज कर रहे हैं। ओके। नाउ द सेकेंड रीजन was truth does not emerge by itself. It is only through a conflict of opposing views that truth emerges. Ideas that seem wrong today may have been very valuable in the emergence of what we consider right kind of ideas. Now, the second reason he gave, John Stuart Mill gave, was like truth does not emerge itself. मतलब truth अपने आप नहीं चल के आता है. We have to emerge it, and it emerged by a conflict of opposing views. ठीक है. अब क्या आपके व्यू पॉइंट्स हैं, ऑपोजिंग क्या ऑपोजिंग के क्रिटिकल व्यूज हैं, उससे ही ट्रुथ जो है, सच्चाई जो है, एमर्ज होके आती है। मे बी आइडियाज जो हैं वो हमें गलत लगते होंगे आज के टाइम पे, बट मे बी फॉर फ्यूचर दैट आइडियाज मे हैव बीन वेरी वैल्यूएबल। ठीक है। बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे। आज से लाइक 150 साल पहले, ठीक है, सती प्रथा होती थी। 200 साल पहले सती प्रथा होती थी, एंड एट दैट टाइम तो दोज पर्सन्स थॉट लाइक, जो सती प्रथा को मानते थे काफी, ठीक है, सेक्रेड मानते थे वो, उनके लिए सती प्रथा, ठीक है, बैन करना वाज लाइक इट वाज नॉट गुड फॉर अ सोसाइटी। उनके लिए ये अच्छा नहीं था, नॉट गुड फॉर देयर कल्चर, बट टुडे इट इज वेरी वैल्यूएबल। सपोज करो आज तक अगर वो सारी चीजें चलती रहती तो क्या होता? नॉट गुड फॉर आवर सोसाइटी, राइट? तो मे बी एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, या फिर आज प्रेजेंट में हमें कोई चीज, कोई आइडिया जो है गलत लग रहा हो, बट मे बी वो फ्यूचर में क्या है, वो सही हो सकता है, राइट? नेक्स्ट इज थर्ड रीजन ही गेव, this conflict of ideas is valuable not just in the past, but is for continuing value for all times. Truth always runs the risk of being reduced and unthinking cliche. एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट को, एक इम्पॉर्टेंट मैटर को क्या करता है, हमेशा ट्रुथ जो है हमेशा रिस्क में रहता है, और उसको लाइक इम्पोर्टेंट, एक अनथिंकिंग क्लिशे, अनथिंकिंग इम्पोर्टेंट फैक्ट को वो क्या करने की कोशिश करता है? रिड्यूस करने की कोशिश करता है। फर्स्ट थिंकर्स जो है वो रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, बट इट इज ओनली व्हेन वी एक्सपोज इट टू अपोजिंग व्यूज दैट वी कैन बी श्योर दैट दिस आइडिया इज ट्रस्टवर्दी। और जो ये अनथिंकिंग क्लिशे है, ये जो इम्पोर्टेंट मैटर है, उससे सच्चाई हम तभी निकाल सकते हैं व्हेन वी एक्सपोज इट टू अपोजिंग व्यूज। बिकॉज राइट नाउ व्हाट हैपन, अकॉर्डिंग टू अस समथिंग इज इम्पोर्टेंट ओनली फॉर अस। ठीक है, कोई बेसिक आइडिया है, फॉर एग्जाम्पल यू इन्वेंटेड समथिंग, ठीक है, कुछ इन्वेंट किया है, आपके माइंड में एक आइडिया आया है, ठीक है, मे बी दैट आइडिया इज राइट ओनली फॉर यू, ठीक है, इम्पोर्टेंट ओनली फॉर यू। लोगों तक इम्पोर्टेंट कैसे बनाना है उसे, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब उसके ऑपोजिंग व्यूज होंगे, कि लोग क्या सोचते हैं उस आइडिया के बारे में, क्या वो आइडिया ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है।
तो कॉन्फ्लिक्ट्स आर नेसेसरी, ठीक है, ऑपोजिंग व्यूज आर नेसेसरी। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यहाँ पे अब वायलेंस से नहीं है, ब्रूटलिटी से नहीं है, इट इज यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है ऑपोजिंग व्यूज से है, क्रिटिकल व्यूज से है, ठीक है। नाउ द फाइनल रीजन ही गेव, we cannot be sure that what we consider true is actually true. Very often ideas that were considered false at one point by the entire society and therefore suppressed turned out to be true later on. A society that completely suppresses all ideas that are not acceptable today runs the danger of losing the benefits of what might turn out to be a very valuable knowledge. Okay? Maybe what you consider true, maybe that cannot be true. ठीक है, जो आप सच समझ रहे हो वो सच नहीं होगा। समटाइम्स आइडियाज जो हैं लोगों को बुरा लगते होंगे, लाइक समटाइम्स सोच लीजिए आज से 70-80 साल पहले जो है किसी पर्सन ने बोला होगा, इट इज पॉसिबल कि हम घर बैठे बैठे क्या है देश के किसी भी कोने कोने में हम बात कर सकते हैं। मे बी एट दैट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम दिस आइडिया were looking by people as foolish, कि उनको लग रहा है क्या बकवास कर रहा है ये, तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। उस टाइम पे वो गलत लग रहा होगा, सोसाइटी को लग रहा होगा कि इट इज नॉट, इट कांट बी ट्रू। बट आज के टाइम पे वी नो दैट वी आर यूजिंग दिस इंटरनेट, वी आर यूजिंग दिस सर्विस, ठीक है, वी आर वर्किंग ऑन दैट आइडिया, ठीक है। हम और भी अब उस आइडिया को जो एक छोटा सा आइडिया आया था, उस आइडिया को अब हम क्या कर रहे हैं और ज्यादा वर्क ऑन कर रहे हैं कि हमें और अच्छी फैसिलिटीज मिले, ठीक है। तो मे बी एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम सोसाइटी वांटेड टू सप्रेस इट, ठीक है, और मे बी वो सप्रेस कर भी देती होगी, बट एट आफ्टर सम टाइम मे बी वो जो है, जो आइडिया है वो लोग एक्सेप्ट करें। It runs the danger of losing the benefits of what might turn out to be a very valuable knowledge. So that's why we often said that कि जो ये आइडिया है हमारा, ठीक है, हमें हो सकता है कि अभी गलत लग रहा हो, बट इन फ्यूचर ये क्या है, ये सही हो सकता है, ट्रू हो सकता है, एक्सेप्ट करेगी सोसाइटी। Okay, so these were the 4 reasons given by John Stuart Mill in his book on liberty, and he said why freedom of expression should be there. He gave 4 reasons. Okay, so now if we conclude this chapter, we from starting we are saying like freedom is the absence of external constraints, and we have to realize it that freedom embodies our capacity and our ability to make choice, ठीक है। Now like okay, freedom means absence of external constraint, but it also meant to um, to develop our capacity, to develop our ability to make choices, and when we make choices we have also to accept responsibility of our actions and their consequences, and if we are making our choices तो ये हमारी responsibility बनती है कि we work on our we accept the responsibility of our actions, क्या actions होंगे, क्या उसके consequences हो सकते हैं, ठीक है। And it is for this reason that most lawyers of liberty and freedom maintain that children must be placed in the care of parents. Okay, इसलिए भी क्या बोला जाता है, चिल्ड्रन को क्या पेरेंट्स के केयर में ही रहना चाहिए। Our capacity to make the right choices, to assess in a reasoned manner available options, and shoulder the responsibility of our actions have to be built through education and cultivation of judgment just as much as it needs to be nurtured by limiting the authority of the state and the society. So our capacity to make the right choices, ठीक है, जो भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करें, हम एसेस करें, हमारी चॉइसेस लें, हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज लें, उनके एक्शंस को हम देखें, उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं उनको देखें, एंड वी कैन डेवलप आवर एबिलिटी
by education, okay, by nurture ourselves by limiting something. ठीक है, हम right now we can कुछ चीजों में हम अपने आप को लिमिट करके क्या कर सकते हैं, अपने आप को नर्चर कर सकते हैं for future. So class, this is all about this chapter freedom. Go through this chapter, read this chapter very carefully, and if you face any problem, do let me know. And today I will send you the PDF of this chapter. You have to make your own notes, but I will send you the exercise PDF of this chapter, which you all are supposed to do in your notebook. And after completion of your work, please do send your work to me. Okay? Chalo. Bye bye. Take care of yourself. Bye bye.